الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وإدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، تحمید و تحلیل اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے کائنات کا معبود برحق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام پر، خصوصاً رسالت کی آخری کڑی تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، رب کی مغفرت کو طلب کریں، اللہ رب العالمین کے رحمت کے ہم امیدوار بنیں، اور یہ امیدوار، یہ اللہ کی مغفرت کی طلب انبیاء کرام اور سلف صالحین میں بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔
آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. آج ہم اگر مقابلہ کرتے ہیں تو زمین و جائیداد کے اندر مقابلہ کرتے ہیں، مال و دولت کے اندر مقابلہ کرتے ہیں. ہمیں پڑوسیوں سے حسد رہتا ہے. ہمارا بھائی اگر ہم سے آگے چل رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو ہم اس کو دیکھ کر حسد اور جلن پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی منزلہ کا مکان ہے، لیکن ہمارا پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارا سگا بھائی کیسے اس کا 2 منزلہ کا مکان بن گیا ہے. ہم اس ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کون سا ایسا کام کریں کہ وہ دنیا کے نظر میں ذلیل ہو جائے اور ہم سے نیچے ہو جائے. لیکن صحابہ کا عمل اس کے برعکس تھا. وہ نیکیوں کے اندر، عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. وہ صحابہ نیکی کے اندر کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے. ہر معاملے کے اندر، کوئی بھی میدان ہو، جنگ کا میدان ہو، خیرات کا میدان ہو، صدقہ کا میدان ہو، نیکی کرنے کا ان صحابہ میں جو جذبہ تھا، کوئی بھی میدان تھا، ہر میدان میں صحابہ کرام آگے آگے حصہ لینے والے تھے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو فرماتا ہے کہ دوڑو رب کی اس مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور یہ صرف متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. دوڑنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا. دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اللہ رب العالمین قرآن عزیز کے دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اے میرے بندو، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اپنے صحابہ کو دیا تھا، وہ صحابہ نے کی کہ ہر عمل میں، ہر میدان میں آگے رہا کرتے تھے. جنگ احد کا میدان ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، ارابی صحابی، جو ابھی اسلام لایا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کیا تھا. اسے جنگ کی حالات معلوم نہیں تھی. اسی وقت اعلان ہو جاتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی الاموال والاولاد، کہ تم کسی بھی حالت میں ہو، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاؤ. وہ عربی صحابی ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر کر اسلام لا چکے تھے. جہاد کے بارے میں انہیں معلوم نہیں تھا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ میں کھجوروں کا ایک گچھا تھا. اس گچھے سے کھجوروں کو تناول فرما رہے تھے، توڑ توڑ کر وہ صحابی کھا رہے تھے. اور کھاتے وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کیا چیز ہے؟ جہاد سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کہا ہے میرے صحابہ، ابھی تم نئے مسلمان ہوئے ہو، اسلام لائے ہو، تمہیں جہاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے. یہ جہاد وہ چیز ہے، اگر تم اس کے اندر شریک ہوتے ہو، شامل ہوتے ہو، اگر اس جہاد کے اندر تم قتل کر دیے جاتے ہو، شہید کر دیا جاتے ہو، تو تم شہید کہلاؤ گے، اور اگر تم بچ کر آتے ہو تو غازی کہلاؤ گے. وہ صحابی رسول جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی اسلام لائے تھے، کھجوروں کا گچھا اٹھاتے ہیں اور زمین پر دے مارتے ہیں.
को, अपने टाइम को क्यों बर्बाद करूं, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बदले में जन्नत लिख दिया है। और आपने फरमाया है कि जो इस जंग के अंदर शहीद हो जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत देगा। वो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चहेते सहाबी जो खजूरों का गुच्छा लेकर अपने हाथों में खजूर तनावल फरमा रहे थे, उस खजूर को जमीन पर रखते हैं और मैदान कारजार के अंदर चले जाते हैं। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इस जंग के अंदर अगर शहीद कर दिया जाता हूं तो क्या मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी वक्त जन्नत देगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ मेरे सहाबी, अगर उस जंग के अंदर शहीद हो जाते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें डायरेक्ट जन्नत के अंदर दाखिल करेगा, तुमसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में कोई मुआखजा नहीं होगा, कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। वो सहाबी रसूल उस जंग के अंदर, जंग उहुद के अंदर शामिल हो जाते हैं और कुछ काफिरों को वासिले जहन्नम करते हैं। लास्ट में आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी उस जंग के अंदर शहीद हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी चीज को वाज़ेह कर रहा है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, दौड़ो रब की उस मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। वो सहाबा जन्नत के तलब में अपने जिंदगी को गुजार दिया करते थे। उनके तरफ में जन्नत थी कि कौन सा ऐसा काम करूं हमें जन्नत हासिल हो जाए। हमने ईद की नमाज अदा की, मकसद यह है कि इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत नसीब फरमाए। रमजान के एक महीने हमने रोजे रखे, भूखों प्यास को बर्दाश्त किया, मकसद यह था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले में हमें जन्नत दे दे। हमने रातों को, अपनी नींद को हराम कर दिया कुरान की तिलावत में, क़यामुल लैल में, मकसद यही था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले हमें जन्नत दे दे। हम सदका और खैरात देते हैं इसलिए कि इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नेकियों में इजाफा करके हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे। जुमा के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद भी यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक फरीजा है जुमा की नमाज, अगर हम छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे और अगर हम इसको अदा करेंगे तो इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत देगा। वो सहाबा जन्नत के अंदर आगे आगे रहा करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उलाइका युसारिऊन फिल खैरात, कि मेरे नबी के जो सहाबा थे वो नेकी के कामों में आगे आगे हिस्सा लेने वाले थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले थे। जंगे तबूक का वाकया है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे तबूक के लिए ऐलान किया। उस जंग के अंदर जो जंगे तबूक थी वो मदीना से 1200 किलोमीटर थी और सहाबे किराम से के पास कोई सवारी नहीं था। 1200 किलोमीटर पैदल सफर तय करके अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को जंग लड़नी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मालो दौलत की किल्लत थी, आपके पास उस जंग में शामिल होने के लिए कोई मालो दौलत नहीं था। आपने अपने सहाबा को हुक्म दिया, आए मेरे सहाबा, अपने इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुछ खर्च करो, कुछ मालो दौलत दो, ताकि इस जंग की तैयारी के लिए हम हिस्सा ले लें। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं और उनके दिल में यह तमन्ना है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कभी नेकियों में मुकाबला नहीं कर सका, आगे नहीं बढ़ सका। आज ये सुनहरा मौका है, आज बेहतरीन मौका है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मालो दौलत के अंदर कमजोर है, मेरे पास मालो दौलत की फरवानी है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं, अपने घर में पहुंचते हैं और घर के सारे सामान को इकट्ठा करते हैं, उस सामान का 2 हिस्सा कर लेते हैं और एक हिस्सा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर देते हैं। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चहेते सहाबी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं, ऐ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, घर में क्या छोड़कर आए हो? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आधा माल
आपके पास लेकर आया हूँ, आधा माल अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़ कर आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मेरे सदक़े को, इस माल को कबूल कर लीजिए। और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खुश हैं कि आज अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से नेकियों में हम आगे बढ़ जाएंगे, आज हमारे मुकाबले में अबू बकर पीछे रह जाएंगे। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी माल जमीन पर रखते हैं कि उतने में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बोरिए के अंदर थोड़ा सा माल लेकर आते हैं और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देते हैं। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ऐ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, तुम अपने घर के बीवी बच्चों के वास्ते कौन सा सामान छोड़कर आए हो, क्या चीज छोड़कर आए हो, क्या लेकर आए हो? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर का जो असासा था, जो पूंजी थी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा का सारा सामान आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया हूं। मैं अपने घर पे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं छोड़ा है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे, अपने उंगली को अपने दांत के नीचे दबाते हैं और अपने चेहरे को आसमान की तरफ करते हैं। कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे यकीन हो गया, मैं मान लिया कि मैं पूरी पूरी जिंदगी के अंदर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से नेकी में आगे नहीं बढ़ सकता। ये सहाबा थे जो नेकी में हिस्सा लिया करते थे और आज हम नमाज से कतराते हैं, आज हम नेकी के काम करने में शर्म महसूस करते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने तमाम अंबिया का जिक्र करने के बाद, तमाम रसूलों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता कि मेरे जितने अंबिया किराम थे, मेरे जितने नबी थे, वो नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, आपके सामने तमाम के तमाम सहाबा बैठे हुए हैं। आपने अपने सहाबा से सवाल किया, कहा कौन इस मजलिस के अंदर है, कौन इस मजमे के अंदर है जिन्होंने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो? फकामा अबू बकर फकाना आना या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस मजलिस से उठ जाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने एक मिस्कीन को खाना खिलाया है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठते हैं, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं कि कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा शख्स है जो आज रोजे की हालत में हो, नफली रोजे की हालत में हो? फकामा अबू बकर फकाना आना या रसूल अल्लाह, फिर वही सहाबी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उठते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं रोजे से हूँ, नफली रोजे से हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर तुम बैठ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा सवाल करते हैं कि कौन इस मजलिस के अंदर है जिन्होंने आज किसी जनाजे की इत्तबा की, जनाजे के पीछे पीछे चला, किसी मरीज की अयादत की? कौन है इस मजलिस के अंदर जिसने किसी बीमार की बीमार पुरुषी की? वही सहाबी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उठते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोहल्ले के अंदर एक शख्स बीमार था, मैं उसकी अयादत करने के लिए गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ऐ अबू बकर तुम बैठ जाओ। चौथा सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कौन इस मजमे के अंदर, इस मजलिस के अंदर है जिन्होंने आज किसी जनाजे के अंदर शिरकत की हो, जनाजे के पीछे पीछे चला हो, उसकी तज़हीर और तकफीन में शामिल हुआ हो? फिर वही सहाबी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उठते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोहल्ले के अंदर एक शख्स का इंतकाल हो गया था, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसके जनाजे के पीछे पीछे चला, उसकी मैयत के अंदर मैं शामिल हुआ, उसके जनाजे में मैं शामिल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठ जाओ। अबू बकर सिद्दीक बैठ जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं। कहा है मेरे सहाबा, अगर ये चार बड़ी बड़ी नेकियां किसी इंसान के जिंदगी में एक ही दिन में चार नेकियां शामिल हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बगैर हिसाब किताब को जन्नत में दाखिल करेगा। ये सहाबा किराम थे जो नेकियों में आगे आगे हिस्सा लिया करते थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफे दोम हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं,
जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर थी, वो सहाबी रसूल उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की ईशा की नमाज अदा करते हैं। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद बयाबान जंगल के अंदर निकल जाते हैं। ये एक सहाबी थे जिनका नाम था तुफैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कहते हैं, अपने दिल में सोचते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ते, ईशा की नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद सीधा जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी खूबी है? तो तुफैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आज उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को की जासूसी करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा ये रात की तन्हाई में जाते कहाँ हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईशा की नमाज पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जंगल बयाबान जंगल के अंदर निकल जाते हैं और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे पीछे तुफैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जासूसी करते हुए निकल जाते हैं। जहां उमर फारूक ठहरते हैं, तुफैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेड़ के आड़ में छिप जाया करते थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगल में चलते चलते काफी दूर निकल गए। क्या देखते हैं कि जंगल के अंदर एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी से एक रोशनी आ रही है। तुफैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बयाबान जंगल के अंदर, इस झोपड़ी के अंदर क्या करने के लिए जाते हैं, इनका राज आज मुझे मालूम करना पड़ेगा। लेकिन राज मालूम होगा जब इस झोपड़ी से उमर फारूक निकलेंगे और मैं इस झोपड़ी के अंदर दाखिल होऊंगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफी देर के बाद उस झोपड़ी से निकलते हैं और निकलने के बाद सीधे दरबार खिलाफत के अंदर जाते हैं। जैसे ही उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु झोपड़ी से निकलते हैं और थोड़ी दूर जाते हैं, थोड़ा कदम जाते हैं, उतने में है तो तुफैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु झोपड़ी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। क्या देखते हैं, उस झोपड़ी के अंदर एक 80-85 साल की बुढ़िया जो आंखों से नाबीना है और हाथों से और पैरों से कोढ़ी और लगड़ी है, एक चटाई पर बैठी हुई है। तो तुफैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, माँ अभी जो तुम्हारे पास से निकल कर गया है, ये शख्स क्यों आता है इधर? ये कौन सा इंसान है, कौन सा शख्स है? कहा है, मेरे बेटे मुझे तो मालूम नहीं है कौन सा शख्स है, लेकिन वो भी मुझे माँ ही कहकर पुकारता है। अरे माँ, वो इंसान, वो आदमी यहाँ आकर करता क्या है? कहा है, मेरे बेटे मैं आंखों से अंधी हूँ और हाथों से लूली हूँ, पैरों से लगड़ी हूँ, मुझे खाना बनाने का तरीका मालूम नहीं है, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अरे मेरे बेटे, वो इंसान जब सबसे पहले मेरे झोपड़ी में आता है, मैं बूढ़ी औरत हूँ, अपाहिज औरत हूँ, नाबीना औरत हूँ, सबसे पहले वही झोपड़ी के अंदर आता है, मेरी गलाजत और गंदगी को साफ करता है, फिर वो यही बैठकर खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद वो मुझे खिलाता है और जब तक मैं आसूदा नहीं हो जाता हूँ, मेरा पेट नहीं भर जाता है, वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है। वहां से तुफैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकलते हैं और सीधे दरबार खिलाफत के अंदर जाते हैं। क्या देखते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहज्जुद की नमाज पढ़कर मुसल्ला पर बैठे हुए हैं और अपने दोनों हाथ को अपने रब की बारगाह में उठाकर जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उनके जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं है, जहन्नम क्या आपको बर्दाश्त कर सके। आज हमें जहन्नम से फिक्र नहीं है। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल दिया करता था, जो अदल के मालिक थे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बूढ़ी औरत की खिदमत कर रहे हैं। आज हम में से कौन है कि बेवाओं की खबरगिरी करे, यतीमों की खबरगिरी करे? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे तो जहन्नम के अजाब से बचा ले। उमर फारूक के अंदर इतनी ताकत नहीं कि जहन्नम क्या आपको बर्दाश्त कर सके। पीछे से है तुफैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथ को उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीठ पर मार देते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक बूढ़ी औरत को की गिलाजत को साफ करने वाला, बूढ़ी औरत को खाना बनाकर खिलाने वाला, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक बेवा औरत की खिदमत करने वाला, अगर ये इंसान जहन्नम के अंदर जाएगा तो मैं नहीं जानता हूं फिर जन्नत के अंदर कौन सा शख्स जाएगा। ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत दे।
میرے بھائیوں، اسی چیز کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو، تم بھاگو رب کی اس مغفرت کی طرف اور رب کی اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ آپ نے جنت کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ جنت کتنا حسین اور خوبصورت ہے۔